Yes. See, choose these numbers one by one. You have chosen 1 and alpha as for whose arithmetic mean will be greater than geometric mean. Then you have chosen 1 and beta. Then you have chosen 1 and gamma. And then you have chosen 1 and delta. Okay. Now you will be doing column wise column multiplication. So column multiplication gives you what? This will give you 1 plus alpha into 1 plus beta, 1 plus gamma, and 1 plus delta. So that gives you 16 under the root alpha, beta, gamma, delta, right? So now, sorry, this sign will be this. So students, now squaring both sides. Or even if you don't do the squaring, still the least value, because you have to find the least value of this. That is why you have chosen 1 and alpha. Okay. 1 and beta, 1 and gamma. So what will be the least value? So this will be greater than equal to 16, right? Yes. Got it, students? So 16 is the correct option. Because these can be very, very small, very, very small. So might be the product will not reach 32. Is this clear or not? Done, students? Yes, sir. Okay. So let's move on to next question. Question number 24. The harmonic mean between two numbers is 14 2 by 5. That's your harmonic mean. And geometric mean is 24. So the greater number between them is, so you have two numbers. Which one is greater? So you can assume the two numbers as A and B, P and Q, whatever you want to choose. So you can choose the two numbers B, A and B. Okay. So their harmonic mean is 14 2 by 5. So that's 14 multiply 5, 70 plus 2, 72 by 5 harmonic mean. And that's equals to, yes, that's equals to 2AB upon A plus B. very good, 2ab upon a plus b. Now second thing is your geometric mean is 24. 24 equal to under root AB. Very good. So now if you simplify it, squaring both sides, you get ab equals to 576, 24 square. Okay, students. So which one of the number is greater? That you need to tell. So obviously you have to find both the numbers, then only you can tell. So you have to find the values of a and b. So you have two equations and two variables. And I've discussed it earlier also. When you have this kind of situation, what's the formula that you can use? Which formula you can use? First of all, you can put this value over here. Yes, what do you get? So that's first and second. So from first, what do you get, students? Yes. 72 upon 5 equals to 2 into 576. Divided by a plus b. So see 72 because 24 3 the 72, right?
So this is 24 into 24. Okay, so 24 3 the 72, so यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ, so this whole cuts and you will get 8. Is this clear? Yes. So a plus b equals to what? This a plus b will go that side. By कैलकुलेशंस ठीक है अपनी. the 40 by 40 by 3. स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस तो ठीक की है ना. 72 by 5, 72 by 5, 2 into 576 upon a plus b. So 10 into 576 by 72. स्टूडेंट्स ये 3 भी तो कट गया था आपका, तभी तो 8 3 24 आया था ना बेटा यहाँ पर. यस. 576 को क्या लिख सकते हो आप? हाउ डू यू राइट 576 एस? 24 into 24. So 24 3 the 72 and then 3 at the 24, right? So what do you get? 2 into 8 upon यही आएगा ना आपका. 2 into 8 into 5 आएगा ना स्टूडेंट्स. So this will be a plus b will be 80. Yes or no? So you know the value of a plus b. You know the value of a into b. So you can find a minus b from here. We have done it earlier also. Yes. Or simply put the value of a over here, but it will be, the calculations will be little bit lengthier. So but it will be, as a whole it will be the same thing. So you have two equations, two variables. So you can put the value of a over here, otherwise you can find a minus b. That's your choice. So if you find a minus b, so a minus b whole square is equals to a plus b whole square. And then, so here it is minus, so net will be same both sides, so it's 4ab, right? Got it? So students, a minus b whole square will be equals to a plus b whole square, means 80 square minus 4 into 576. So this comes out to be, solve it out, tell me. 6400 minus 6 for the 24, 233, 23. So 2304. And this comes out to be 4096. So 4096, you have to find the square root. And this is the square root of 64. So a minus b equals to 64. How can you find it? 4096. So make a pair of 2, 3, 3 the, 36. So 6, 6 the 36. And now you have to write here 6 and 6, 12. And 34, that's 4, 496. So it will go with 4, because 4, 12 for the 48. So plus 116, so 14. So 64. Okay, so a minus b is 64. So a plus b is 80.
a minus b is 64. So add both of them, you get 2a is equals to, adding both of them, 1, 8 and 6, 14, 144. So a is equals to 72. So sum is 80. So other number is 18. So which one is greater? 72. Okay, students. Is this clear? सर आपने a minus b whole square क्यों किया है यहाँ पे? Okay, good. See, Yes, sir, same question. okay, same question. I answered it earlier also. Whenever we have a plus b and a into b, we have two choices. The other choice that you had was, from here put a, write a is equals to 576 upon a, or what you can do is from here you can find the value of a is equals to 80 minus b and put this value over here. So what do you get? You get, see, ये तो एक, अगर हमारे पास a प्लस बी है, a मल्टीप्लाई b है, तो हम a माइनस b निकाल सकते हैं. a माइनस b हमें पता है, a प्लस b हमें पता है, तो टू इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी है बस. Otherwise you can use this method also. So what do you get? This is not the first time I am doing it. Just couple of days ago also I did the same thing. Okay. So put the value of a here. This is, yes, put this value of a here. That's 576. So now that's 80b minus b square is equals to 576, and b square, take b square this side and 80b also this side, is equals to 5 plus plus 576 equals 0. So do this way. This way is also fine. No problems. So b square 576 के फैक्टर्स बनाने हैं. अब आपको 576 पता है 24 into 24. अब इस 24 के बना लो 8 into 3 into 24. तो ये बन गया बहुत इजीली. ये इजी तरीका हो गया आपके लिए. 72 and 8. So 72b minus 8b plus 576 equals 0. तो b है तो b minus 72 minus 8 into b minus 72 equals 0, and b minus 72 into b minus 8 equals to 0. So it means b की वैल्यू आ गई 72 and 8. So I think you find it easier. Yes, sir. चलो इससे थोड़ी स्क्वायर रूट की तो प्रैक्टिस हो गई आपकी. भूल गए थे तो याद आ गया होगा, राइट? Yes, sir. Shall we do the next question now? Yes, sir. Question number 25. The number of divisors of this, and this are in AP, GP, HP. इसके कितने डिवाइजर्स होंगे, कितने नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर सकते हैं? 3 into 10⁻⁷ के नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताना. 3 के, देखो सबसे पहले 1 तो होगा ही होगा बेटे, ठीक है, 1. उसके अलावा एक और नंबर 3, ठीक है. उसके अलावा 7⁻³ है, तो एक 7, एक 7⁻², एक 7⁻3, राइट? ओके. Yes, sir. प्लस एक ये होल नंबर सारा का सारा. क्लियर हो गई बात? तो कितना है डिवाइजर्स? 6, sir. देखो इसके 2 वेज हैं और इसके जो हैं 7, 7⁻1, 7⁻2, 7⁻3, तो इसके हैं 4 वेज. तो 4 वेज इसके हैं, 2 वेज इसके, तो टोटल हो जाएंगे 8 वेज, यानी कि 8 डिवाइजर आएंगे आपके टोटल. हाँ अंशिता, मैं समझ रहा हूँ आप यही कह रहे थे कि सर 7×3 भी तो होगा, तो वो सारे ले लिए मैंने. 7 और 7⁻1 सेम होगा. देखो सॉरी,
oh sorry that's the same thing of course. तो इसका एक ये शॉर्टकट आप कह सकते हो, इसको अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हम करेंगे, आप इसका एक शॉर्टकट समझ लो क्या है, ठीक है। तो जब भी ये आएगा कि कितने डिवाइजर होंगे, आपको क्या करना है, यहां जो पावर है स्टूडेंट्स, यहां जो पावर है उसमें आप 1 ऐड कर दो, इनटू यहां जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। 3 + 1 तो 2 × 4 इज 8, तो 8 डिवाइजर होंगे इसके, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, शॉर्टकट है, ओके। अच्छा 7 × 11⁻² के कितने होंगे बताओ, चलो। 4 sir. 2 × 3 होंगे Yes sir. Yes. 6 डिवाइजर्स। अच्छा 2 × 61 के कितने होंगे? 4 sir. 4 होंगे, क्योंकि इसकी पावर 1 1 है, तो इसके 2 के 1 + 1 और 61 के 1 +। अब आप देख लो इसके 4 होंगे या नहीं होंगे। अब आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन चेक देम आउट। कैसे? देखो इसके 4 कौन कौन से होंगे, 1 2 61 एंड 2 × 61 हो गए 4। इसके 6 आप करना चाहो तो कर सकते हो, 1 7 11 121, और एक होगा 7 × 11, एक होगा 7 × 11⁻²। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, बस बताओ इसके अलावा कोई हो तो। उसी तरीके से तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, समझ रहे हैं। चलो Yes sir. ओके, तो उसी तरह 8 का भी हो जाएगा। डन, समझ आ गई बात। Yes sir. तो ये एक नई चीज, तो दिस इज न्यू थिंग फॉर यू पीपल। तो क्वेश्चन क्या था आपका? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस, तो ये एपी में है, जीपी किस में? 8 4 क्या है ये? 864 क्या है ये? व्हाट इज इट? AP. एपी, क्योंकि दिस इसमें कितना ऐड करें ये बन जाए -2, इसमें कितना ऐड करें -2, तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। चलो वेरी गुड Yes. स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, the next question that you have is, if the arithmetic mean of two positive numbers is a and their geometric mean is g, harmonic mean is h, then h equals to what? ये तो आपको पता ही है ना। किस में होते हैं ये तीनों? जीपी में, जीपी में होते हैं ना, ए जी एंड एच। अर्थमेटिक मीन, इनके बीच में 2 रिलेशन आपको पता होने चाहिए। सॉरी एक सेकंड। फर्स्ट दिस इनइक्वालिटी, एंड सेकंड थिंग इज g² is equals to ah, they are in gp। okay students, yes or no? और आप यहां प्रूव भी कर सकते हो। इसको प्रूव करना तो देख लो फटाफट। a is equals to a plus b by 2, g is equals to √ab, and h is equals to 2ab upon a plus b, ठीक है। अब आपको h किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, g² h is equals to 2g², और a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, g² बाय a, यानी कि h × a इज इक्वल्स टू g²। आ गया, हो गया प्रूफ, डन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो ये इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ यही चीज यूज होनी है इसके अंदर। सो दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 मल्टीप्लाई भी है, पावर भी है 1/3, तो ज्योमेट्रिक मीन यूज हो रहा है। समझ रहे हैं? तो 3 नंबर्स ले लो और सबसे बड़ी बात है ऐड भी हो रहे हैं तीनों, है ना? तो तीनों नंबर कौन कौन से लोग हैं इसमें? हाँ ए बी सी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर? सम और प्रोडक्ट किसका हो रहा है बेटा? ए बी सी का या इनके स्क्वायर्स का? स्क्वायर्स का सर। स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स का। तो स्क्वायर लो 3 नंबर फिर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर द 3 नंबर्स, राइट? और इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यस। तो बताओ अर्थमेटिक मीन क्या होगा इनका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन, इक्वल तो है नहीं, डिस्टिंक्ट है ना, तो इसलिए इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ, ठीक है? क्योंकि डिस्टिंक्ट है। अगर इक्वल, अगर नहीं पता होता डिस्टिंक्ट है तो लगा सकते हो। ओके, तो ये हो गया इनका ज्योमेट्रिक मीन। यस। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू 1। 1। तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। तो दिस इज, तो ये चीज क्या है? लेस देन है 1 से या इक्वल टू है, ग्रेटर देन है? लेस देन सर। लेस लेस देन। देन इक्वल टू। नहीं नहीं, इक्वल टू तो गलती से लिख दिया ना मैंने, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, तो इक्वल टू नहीं आएगा। ओके। यस सर। हाँ क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। तो स्टूडेंट्स आ गए आपके पास? तो दिस इज लेस देन 1, सो लेस देन, ए पार्ट हो गया इसका आंसर। चलिए अब 28 को तो छोड़ दो, इसमें अभी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी स्टार्ट नहीं की है। तो स्टूडेंट्स ये जो है एपी जीपी एचपी, इसके खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट एजीपी। ये क्या है एजीपी? कौन बताएगा? व्हाट इज एजीपी? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर। यस। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को भी बोल देते हैं कई बार इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो PROGRESSION। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये सीरीज है, बताओ इसका सम कितना होगा? बताओ इसका सम कितना होगा? चलो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे? The formula is equal to A/1 - R। अरे रुक जाओ, ये टीएन ही निकालोगे इसमें एजीपी में? क्या करोगे? एजीपी, हाँ बेटे बोलो, क्या करोगे एजीपी में? nth टर्म निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? यशस्वी, हाँ बेटे याद है, भूल गए? nth टर्म बताओ क्या आएगी इसकी, जल्दी से nth टर्म निकालो।
क्या लिख सकते हो आप इसके nth टर्म? ये क्या है? 1 2 3। हाँ अंशिता, आप क्या बता रहे थे बेटे? आप क्या तरीका बता रहे थे? Sir, हाँ we can apply formula. हाँ, कौन सा फॉर्मूला बताओ? Sir, S infinity equal to A upon 1 minus R. तो आर क्या है इसमें, चलो ये बताओ मेरे को। चलो सबसे पहले ये फार्मूला आप तभी यूज करते हो जब जीपी हो। जीपी का मतलब है दिस अपॉन दिस, 2.2 इंटू 5⁻², डिवाइड बाई 1 इंटू 3⁻²। क्या ये इक्वल है 3 इंटू 7⁻², डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5⁵ के? क्या ये रेशियो सेम है दोनों की? बात आई कुछ समझ? No, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला Cannot. तो इसका मतलब कैन नॉट इक्वल, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए है? जीपी के लिए। ओके, Yes, sir. तो यहां आप nth टर्म लिख सकते हो। कैसे लिखोगे nth टर्म? चलो एपी के नेट टर्म मल्टीप्लाई बाय ये तो 1 2 3 4 5 6 है, तो n हो गई है, तो n आएगा। फर्स्ट टर्म है तो 1 आएगा, सेकंड टर्म है तो और उसके बाद ये बाकी, इसको क्या लिख सकते हो आप? फर्स्ट टर्म है तो क्या है ये, क्या लिख सकते हैं इसको? 2n+1 लिख सकते हैं इसको का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, पुट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दोगे तो क्या लिख सकते हैं? n इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। तो nth टर्म आ गई आपके पास भाई, पुट कर दो n इज इक्वल टू 3 t3, तो क्या आएगा आपके पास? t3 3 इंटू 3 टू द 6 + 1 7 स्क्वायर आ गया ना? ठीक है, इसका मतलब ये nth टर्म। हाँ बेटा, एग्रीड और नॉट एग्रीड? यस सर तो किसके Yes, इक्वल sir. हो गई है? n इंटू 4n² + 1 + 4n। और ये किसके इक्वल हो गया? 4n³ + 4n² + n, इसके इक्वल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर अब s इंफिनिटी क्या है? इन सारी टर्म्स का सम कर दो, बस यही तो है। ओके, यस सर अच्छा इसमें एक गलती जो है वो ये है कि n टर्म्स का सम है ये। सीरीज इनफाइनाइट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सम किसका निकाल रहे हैं? ये सीरीज इनफाइनाइट है, लेकिन सम किसका निकालना है हमें? इनफाइनाइट का तो निकल ही नहीं सकता, वो तो ऑब्वियस आप देख ही रहे हैं कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कन्वर्जिंग, ये बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी अंशिता ने कि भाई सिर्फ कन्वर्जिंग जो जीपीज हैं उन्हीं का सम निकल सकता है अगर वो इनफाइनाइट है तो। और यहां पर ना तो ये जीपी है और ना ये कन्वर्जिंग है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो इसीलिए इसमें सम किसका निकलेगा? एन टर्म्स का, यानी कि पार्शियल सम। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड क्लास में बताया था मैं जब क्लास शुरू की थी 1 महीना पहले, क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल सम पार्शियल सम। ठीक है, पार्शियल सम निकलेगा इसका। चलो, तो इस सीरीज का पार्शियल सम यानी कि एन टर्म्स का सम, तो डेट इज सिग्मा टी एन एंड डेट इज इक्वल्स टू सिग्मा 4n³ n⁻1 1 to n तक जाएगा। ओके, अब ठीक है, प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये n इक्वल्स टू बेशक मत लिखो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ n ही है आपका, तो ये 1 to n लिख लो, एक ही बात है। ओके, तो इसलिए बार बार n Yes, लिखो। sir. हाँ,
तो ये हो गया 4n² प्लस सिग्मा 1 मीन्स n की वैल्यू 1 to n। ओके चल, तो 4 तो कांस्टेंट है, n³ का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? n+1/2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। प्लस 4 इंटू n² का बताओ। सर n+1 to n+1/6। वेरी गुड, n इंटू n+1 इंटू n+2/6, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद सर 2n+1 आ रहा है यहाँ पे। n/2, n+1 ओ सॉरी 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 सॉरी, 2n+1, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो कितना आएगा बताओ, चलो ये आएगा 2n+1 और दिस इज n/2 इंटू n+1, राइट? ये हो गया सिग्मा। यस। चलो बताओ, तो अब ये टोटल कितना बना, चलो बताओ। इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप इस सारे में से? सबसे पहले देखो, देखो 2 तो आपका यहां भी कट जाएगा, ठीक है, और ये 6 है, तो 6 तो नहीं कट पाएगा, तो इसलिए इस 2 को भी काटना इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो चलो काट दिया तो ठीक है, जो कट रहा है वो काट लो। अब बताओ अंदर क्या बचा आपके पास? n इंटू n+1 सब में है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो यहां से क्या बचेगा? n इंटू n+1 तो बाहर निकल गया आपका, तो सिर्फ कितना बच गया आपके पास? 2 का होल Two, स्क्वायर। two into n plus. हाँ, 2 इंटू एक n+1 बाहर बच गया, एक n+1 तो रह गया ना बेटा। Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है। Yes, यस sir. सर। उसके बाद 4/6, n इंटू n+1 तो चला गया, बचा क्या आपके पास? 2n+1 प्लस 1/2। 1/2 बच गया सर, बिल्कुल ठीक है। Sir, n/2 into n+1 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? अरे बेटे ये n इंटू n+1 तो सभी का बाहर निकल गया ना, ये Okay, sir. तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, अब ये 6 भी, इट्स बेनिफिट इज 6 को भी आपको यू हैव टू टेक इट आउट। ओके, तो यहाँ से तो 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 6 to the 12, और यहाँ बन जाएगा आपका, ये 2 है नीचे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअली आप, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले को तो बाहर रख लिया, 6 जो मल्टीप्लाई करे उसको अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 6 to the 12, 6 यहाँ मल्टीप्लाई के कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? ओके गॉट इट। तो क्या आ गया? n इंटू n+1/6 इंटू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगी टर्म आपकी? 12n² प्लस 12n यस सर। प्लस 4 to the 8n प्लस 4 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स व्हाट यू विल गेट? n इंटू n+1/6 इंटू 12n square plus 16n plus 7। कुछ गड़बड़ है इसमें भी, 7 तो ठीक है आपका, और कहीं मल्टीप्लाई करने में कहीं कुछ 2n+1 4/6
लिया है ना कुछ इसमें स्टूडेंट्स, कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या? कुछ आप अपना अपना करके देखो, क्या सेम कैलकुलेशंस हैं? सी इज देयर एनी कैलकुलेशन एरर? क्योंकि आंसर्स जो है वो मैच नहीं कर रहा है ABCD से। देयर इज सम एरर, कैलकुलेशंस में एरर है। क्या एरर है? सर 8 + 6 + 3 आएगा, 4 + 3 नहीं आ रहा। अरे भाई दोबारा लिख लो यार तुम। सर 8n² + 12n + 17 आ रहा है ब्रैकेट में। अरे इसमें कहाँ कहाँ गलती नजर आ रही है इसमें? सर LCM प्रॉब्लम हो रही है। एलसीएम प्रॉब्लम? यस सर, जहाँ पे आपने 6/6 मल्टीप्लाई करा। 6 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिवाइड कर दिया, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 टू द 12, 6 से 6 कट गया, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम यही है। समझ नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही प्रॉब्लम। तो दोबारा से लिखो एक बार। 4 इंटू n/2 इंटू n+1 होल स्क्वायर प्लस 4/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस n/2 इंटू n+1। ठीक है, यस सर। डेट इज इक्वल्स टू, अब n इंटू n+1 निकालो कॉमन बाहर, तो क्या बचा अंदर? सर 2n n+1। हम्म ये 2 भूल गए हम पहले, यहां ये गलती है हमारी। ये 2 काट दिया ना इसको, एक 2 भूल गए अंदर, एक 2 और भी तो बचा है यहां पर। ये 4 ही एक्चुअली पूरा कटेगा ना ये, यही गलती है। समझ में आ गई गलती क्या थी? अरे स्टूडेंट समझ गए ना बात को? यस सर, होल स्क्वायर था ये, क्लियर सर। भाई ये यहां जो स्क्वायर है, ये n इंटू n+1 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, तो ये 4 इंटू 1/4 तो बचा, यस सर। ये बचा ना अंदर। यस सर। तो स्टूडेंट्स यही गलती थी बस हमारी, और कुछ गलती नहीं थी। ये n स्क्वायर का ये मैच नहीं कर रहा था, वो क्यों मैच नहीं कर रहा था, और उसके कारण ये फिर n की टर्म भी मैच नहीं करेगी, इसलिए 7 तो मैच कर रहा था। तो यहाँ ये 12 नहीं है एक्चुअली, कितना है ये? 6 है यहाँ। ओके, तो इसलिए जो टर्म आएगी ये क्या आएगी? 6n², और यहाँ भी क्या आएगा? 6n। अब आंसर आपका ठीक है, 6n² + 14n। तो स्टूडेंट देखो, कई बार ऐसे गलती आती है, ये ऐसे काटने में हमें बहुत ध्यान से जो है इसको काम को करना है। ये यहाँ स्क्वायर था, तो ये एक्चुअली 1/4 तो पूरा कटना था। तो अब अगर आप 6 एलसीएम लोगे तो यहाँ 6 आएगा पूरा, 12 नहीं आएगा। तो छोटी सी मिस्टेक के कारण जो है ये सारा गड़बड़ हो गया। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। यस अब है ना, आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं इस सीरीज के, आपने पहले भी कर रखे हैं, क्लास में भी इसके प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस आपको भूल गए, ये जीपी, ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं। सम अब जो सीरीज है, that is 1 + 3x + 6x² + 10x³ + so on up to infinity. Okay,
तो इसका सम कितना होगा? तो आप कह रहे हैं सर ये भी तो इन्फिनिटी है, इसको कैसे निकाल लेंगे? वो तो सम ऑफ एन टर्म्स था, ये इन्फिनिटी है। तो इसका एन की टर्म्स में नहीं आएगा। अगर सम ऑफ एन टर्म्स जैसे पिछली बार निकाला था तो एन टर्म्स में आया था, इसका जो सम होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, तो चलो लेट्स सी। तो देखो यहां पर इसको जो है हम कॉमन रेशियो क्या दिखाई दे रही है आपको इसमें? एक्स है ना? तो हम इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म्स को, तो टर्म्स कटती चली जाएंगी फिर हमारी। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x, तो क्या मिलेगा? x इंटू एस, और आपको मिल जाएगा x प्लस इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दे तो यहां गए टर्म, इसके साथ x मल्टीप्लाई करोगे तो कहां जाएगा? 3x²। इसके साथ x मल्टीप्लाई करोगे तो कहां जाएगी? 6x³। होगा नहीं होगा ऐसा? यस यस सर। तो अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें? यस तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? s इंटू, चलो s को बाद में ले लेना कौन, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा आपका ऊपर से, और 3x माइनस 2x, तो 3x माइनस x 2x, 6x² माइनस 3x² 3x² प्लस, 4x³ और ये इस तरीके से जाती चली जाएगी कहानी। यस अब आप यहां से x कॉमन ले लो तो क्या आ गया? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल्स टू, अब जो है यहां पर अगर x हमारा अब फिर से वही काम करना पड़ेगा जो आपने ऊपर किया है। फिर से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार और। तो इधर x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? x, ये क्या आ जाएगा? प्लस 2x², ये क्या आ जाएगा? प्लस 3x³ प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का तरीका वही है जो आश्रिता आपने बताया था, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो उसी वहीं पर लेकर आ रहे हैं हम कहानी को। तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करो तो व्हाट डू यू गेट? यहाँ s तो आपका कॉमन है, देखो टर्म्स कितनी है टोटल? 1 2 3 4, ये ठीक है, समझ गए। तो s कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास? ऊपर से क्या बचा? वही 1 माइनस एक्स, उसके बाद इसको माइनस कर दो आप, ये क्या आया? माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियर है ये बात? भाई इसमें से s कॉमन ले लिया आपने, माइनस दिस, इसमें से भी s बाहर निकल गया, यही तो किया है। तो बड़ी बात है क्या ये? नो सर प्लीज। और अब ये आ गया एक, इसीलिए जो है ना क्वेश्चन जो है उसमें x आपका ये गिवन है, नहीं गिवन नहीं है, लेकिन हमें मानना ही पड़ेगा ये, इसके बिना मानने तो बात बनेगी नहीं। आंसर आ जाएगा ना, तभी तो आएगा ना हमारा आंसर। अब देखो यहां से 1 आ गया आपके पास, अब 2x माइनस एक्स क्या हो गया? x, ये क्या हो गया? 3x माइनस 2x² प्लस x³ एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। अब बन गई आपकी बात। तो मोड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपकी इस क्वेश्चन की। डेट्स इक्वल्स टू, अब यूज कर दो आशिता आप अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आपका? हाँ, अब देखो जीपी बन गई। अब देखो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, और सॉरी कॉमन रेशियो क्या है? x है ना, दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड, तो सबको x से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, और x क्या है? बिटवीन 1 एंड -1। तो अब आप, तो ये क्या, कौन सी बन गई? कन्वर्जिंग सीरीज। क्या बन गई? कन्वर्जिंग जीपी। ओके,
चलो, तो क्या आ गया? ए क्या आपका 1 और आर क्या है x। तो स्टूडेंट्स यहां से एक सेकंड, तो इसको सॉल्व करना एक बार। क्या रहा आपका? हेलो, अच्छा नमस्कार सर, एक बात समाचार सुनाऊंगा बोलिए। हाँ बताइए। सर जी आपकी गाड़ी सर्विस के लिए थी कि आपकी ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम अपनी गाड़ी चलने में? हाँ, गाड़ी सर ठीक चल रही है, आपकी कोई दिक्कत हो नहीं? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है। ठीक है सर, बाकी सर गाड़ी की सर्विस में क्या क्या काम हुआ सर बता दूं आपको? हाँ, सर, सुनो, मेरे को ना प्लीज 5 मिनट में फोन कर लोगे? मैं एक बार कुछ काम कर रहा हूँ, 5 मिनट में। 5 मिनट तक तो सर। हाँ, ठीक है सर। स्टूडेंट्स निकला? यस। सर 1 माइनस एक्स की होल पावर -3। यस, यही आंसर आएगा। देखो आपका 2 टर्म है यहाँ, आप उसको करोगे फिर आप देखो ध्यान से, 2 टर्म है और इन दोनों टर्म्स में यहाँ ये 1 मल्टीप्लाई कह सकते हो आप, तो क्या कॉमन ले सकते हो? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स। ये बात समझ आई ना? यस सर। हाँ बेटा, यहाँ देखो आशिता, समझ आई ये बात? अरे जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये सिचुएशन आती है तो फिर कॉमन ले लेते हैं ना। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा? 1 इंटू, तो ये क्या बचा? 1 माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, तो देखो ये हमने सम निकाल दिया है जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का, 1/1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि इसमें कंडीशन थी, ये तभी निकल पाया when x is between 1 and -1. Is this okay students? Done? यस सर, डन क्लियर। यस सर। चलिए, अच्छे क्वेश्चंस किया आज आपने। निशांत, हिमांशी बेटा, यस सर, डन। ओके, महक, यस सर डन। नमन, यस सर, डन। ओके गुड। चलो बेटा, ऐसे ही देखो, मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। डेली हम 1 आवर प्रैक्टिस करते हैं, तो सोचो आप अगले चैप्टर करते रहोगे मैथ्स में, पिछले भूलते रहोगे आप। तो इसका यही एडवांटेज है, आप पिछला आप भूलोगे नहीं, ठीक है? यस सर। तो आज मैथ्स में क्या, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा क्या कराया था सर ने आज? सर आज ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। The miscellaneous exercise of linear inequalities. लीनियर इनइक्वालिटी शुरू करा रखा सर ने चैप्टर। यस सर।